مائیکل فیراڈے ایک مشہور انگلش سائنٹسٹ تھے۔ فیراڈے نے الیکٹرک بیٹری ایجاد کی جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آج تک استعمال ہو رہی ہے، مثال کے طور پر گاڑیوں میں، یو پی ایس میں وغیرہ وغیرہ۔ ویلکم ٹو مسٹر فیراڈیز کلاس روم۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نمبر 1 ریویژن آف 10 اینڈ ونس یعنی اکائی اور دہائی کی دہرائی۔ نمبر 2 100 یعنی سینکڑا۔ نمبر 3 thousands یعنی ہزار۔ نمبر 4 100,000 یعنی 100,000۔ نمبر 5 ایکسرسائز آن ہاؤ ٹو رائٹ 100 and thousands in words یعنی سینکڑے اور ہزار کو اعداد میں لکھنا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 3 کی میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 1 نمبرز کے ٹاپک thousands and 100 یعنی سینکڑے اور ہزار کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے اپنی پہلی کلاس میں ٹینس اینڈ ونس یعنی اکائی اور دہائی کے بارے میں پڑھا اور سمجھا، تو چلیے ہم اسے دہرا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے نئے سبق thousands and hundreds یعنی سینکڑے اور ہزار کو سمجھنے کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ چلیں پلیس ویلیو کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا نمبر سسٹم 10 نمبرز پر مشتمل ہے۔ 10 نمبرز جنہیں ہم ڈیجٹس کہتے ہیں کے استعمال سے کوئی بھی نمبر لکھ سکتے ہیں۔ آپ ان نمبرز کو ان کی ترتیب میں لکھ سکتے ہیں، یعنی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ لیکن جب ہم 10 پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں 10 کے لیے کوئی ڈیجٹ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کریں گے کہ تمام نمبرز اگلے خانے میں بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک 10 اور 0 یونٹ ہیں اور ہم اس لیے 10 لکھیں گے، اور اب ہم اسے آگے لکھ سکتے ہیں 11 12 13 14 15 16 17 18 19 پر پہنچ کے ہم دوبارہ پہلے والا عمل دہرائیں گے۔ اب ہمارے پاس 2 10 اور 0 یونٹس ہیں اور ہم اسے 20 لکھیں گے۔ اس عمل کو 99 تک چلانے پر اور ایک مزید جمع کرنے سے 10 حاصل ہوں گے۔ ان کو آگے شفٹ کرنے سے 100 0 10 اور 0 یونٹس حاصل ہوتے ہیں اور ہم اسے 100 100 لکھتے ہیں۔ آئیے اب ایک اور اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں 100 یعنی سینکڑے تک کے اعداد کے بارے میں سمجھایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 100 تک کے اعداد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک بلاک کو ایک اکائی کہتے ہیں اور 10 بلاک کا گروپ ایک دہائی کہلاتا ہے۔ جب ہم 10 دہائیوں کا گروپ بناتے ہیں تو ایک سینکڑا بن جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ 241 میں کتنی اکائیاں، کتنی دہائیاں اور کتنے سینکڑے ہوتے ہیں۔ ہم 241 سے سینکڑوں یعنی 10 دہائیوں کے گروپس کو الگ کر لیتے ہیں اور باقی بچنے والے 41 بلاک میں سے دہائیوں یعنی 10 اکائی کے گروپس کو الگ کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس بس ایک بلاک بچ جائے گا جو کہ ایک اکائی کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 241 میں ایک اکائی، 4 دہائیاں اور 2 سینکڑے ہیں۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس مثال کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر دکھائے گئے سکوں کو غور سے دیکھیں۔ ہر سکے پر لکھا ہوا عدد اس کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک سکہ ایک اکائی کو ظاہر کر رہا ہے، دوسرا سکہ 10 دہائی کو ظاہر کر رہا ہے، تیسرا سکہ 100 سینکڑوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ آئیے اب عدد 241 کے ہندسوں کو ان کی مقامی قیمت کے مطابق لکھتے ہیں۔ اس سے ہمارے پاس ایک اکائیوں کے کالم میں ایک سکہ آئے گا، دہائیوں کے کالم میں 10 کے 4 سکے آئیں گے اور سینکڑوں کے کالم میں 100 کے 2 سکے آئیں گے۔ ایک اکائی جمع 4 دہائیاں جمع 2 سینکڑے برابر ہے 241 کے۔
1 जमा 40 जमा 200 बराबर है 241 के। लफ्जों में हम इसे 241 पढ़ते हैं। अब स्क्रीन पर आपको कुछ एदाद दिए गए हैं जिन्हें आप इकाइयाँ, दिहाइयाँ और सैकड़ों के कॉलम में लिखें और प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आप 100 सैकड़े को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं और सैकड़े के बारे में सीखते हैं। 10 दिहाइयाँ मिलकर एक 100 बनाती हैं। 146 में इकाइयों, दिहाइयों और सैकड़े की तादाद बनाइए। 146 में 6 इकाइयाँ, 4 दिहाइयाँ और 1 सैकड़ा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सवाल किताब से हल करते हैं। इकाइयाँ, दिहाइयाँ और सैकड़े की तादाद गिनकर आदाद लिखिए। पहली एग्जाम्पल ये है। जी हाँ, पहली मिसाल में 3 सैकड़े, 2 दिहाइयाँ और 1 इकाई है। 2 सैकड़े, 2 दिहाइयाँ और 3 इकाइयाँ हैं, जो कि 223 के अदद को बनाती हैं। 3 सैकड़े, 1 दिहाई और 2 इकाइयाँ हैं, जो कि 312 के अदद को बनाती हैं। तो अब हम हजार के बारे में सीखते हैं। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। अली के पास 10 सिक्के हैं और हर एक की कीमत 100 है। 100 बराबर है 100 के, 1000 बराबर है 10 100 का एक ग्रुप। नंबर 2349 में 9 इकाइयाँ, 4 दिहाइयाँ, 3 सैकड़े और 2000 हैं। आइए थाउजेंड्स को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 10 दिहाइयों का ग्रुप एक सैकड़ा होता है। इसी तरह 10 सैकड़ों का ग्रुप 1000 के बराबर होता है। 1000 बराबर है 10 सैकड़ों के ग्रुप के। आइए मिसाल की मदद से समझते हैं। अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। एदाद को लिखते वक्त सैकड़े और हजार के मुकाम के दरमियान कुछ फासला रखा जाता है। 3254 में 4 इकाइयाँ, 5 दिहाइयाँ, 2 सैकड़े, 3000 हैं। टेबल। इस टेबल में हजार के कॉलम में 3 सिक्के आएंगे, सैकड़े में 2, दिहाइयों में 5 और इकाइयों में 4। 3 का हिस्सा हजार के मुकाम पर है, उसकी कीमत 3000 है। 2 का हिस्सा सैकड़े के मुकाम पर है, उसकी कीमत 200 है। 5 का हिस्सा दिहाइयों के मुकाम पर है, उसकी कीमत 50 है। 4 का हिस्सा इकाइयों के मुकाम पर है और उसकी कीमत 4 है। 3000 जमा 200 जमा 50 जमा 4 बराबर है 3254 के। लफ्जों में हम इसे 3254 पढ़ते हैं। तो अली के स्कूल में 3254 तलबा हैं। क्या आप एक ऐसा अदद लिख और पढ़ सकते हैं जिसमें 5000, 6 सैकड़े, 2 दिहाइयाँ और 4 इकाइयाँ हों? 4 इकाइयों का मतलब है कि इस अदद में सबसे पहला हिस्सा 4 है, फिर 2 दिहाइयाँ यानी 2 का हिस्सा आएगा। उसके बाद 6 सैकड़े हैं तो 6 का हिस्सा 2 के बाद आएगा और आखिर में हजार का हिस्सा 5 आएगा, जिससे हमें 5624 ये अदद हासिल हो जाएगा। 4 इकाइयाँ, 2 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5000। तो 5624 बराबर है 5000 जमा 600 जमा 20 जमा 4। लफ्जों में हम इसे 5624 पढ़ते हैं और हिस्सों में 5624 ऐसे लिखते हैं। इसको मजीद समझने के लिए हम एक और मिसाल को हल करते हैं। एक स्कूल की लाइब्रेरी में 12635 किताबें हैं। मुकामी कीमत का जदूल देखें। इसमें एक 10,000, 2,000, 6 सैकड़े, 3 दिहाइयाँ और 5 इकाइयाँ हैं, यानी 12,635 बराबर है 10,000 जमा 2,000 जमा 600 जमा 30 जमा 5। लफ्जों में 12,635 पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको एक अदद 93465 दिखाया गया है।
आप हर हिंसे की मुकामी कीमत की निशानदही करें। तो इस अदद में 5 इकाइयाँ, 6 दिहाइयाँ, 4 सैकड़े, 3000 और 9 10,000 है। 90,000 जमा 3,000 जमा 400 जमा 60 जमा 5 बराबर है 93,465 के। जरा सोचिए 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं। 10,000 का ग्रुप बराबर है 1 0 0 0 0 0 के। मिसाल से इसको समझते हैं। अदद 215678 के हर हिस्से की मुकामी कीमत की निशानदही कीजिए, जो बराबर है 8 इकाइयाँ, 7 दिहाइयाँ, 6 सैकड़े, 5,000, 10,000, 200,000, यानी 215 678 बराबर है 200,000 जमा 10,000 जमा 5,000 जमा 6 सैकड़े जमा 7 दिहाइयाँ जमा 8 इकाइयों के। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं और 100,000 के बारे में जानते हैं। याद रखिए कितनी दिहाइयाँ मिलकर 100 बनाती हैं। 100 10 दिहाइयों के बराबर होता है। कितने हजार मिलकर 100,000 बनाते हैं? 100,000 बराबर होता है 10,000 के। नंबर 125386 में 100,000 1 हैं, 10,000 2 हैं, 1,000 5 हैं, 100 3 हैं, दिहाइयाँ 8 हैं और इकाइयाँ 6 हैं। आइए अब हम एदाद को अल्फाज में लिखना सीखते हैं। आपके सामने पहला नंबर है 10583। इसको हम एदादी शक्ल में यूं लिखेंगे 10,583। अब आपके सामने दूसरा नंबर है 4192। इसको एदादी शक्ल में 4,192 लिखा जाएगा। अब आपके सामने तीसरा नंबर है 120367। इसको एदादी शक्ल में 120,367 लिखा जाएगा। अब आपके सामने आखिरी नंबर है 908561। इसको एदादी शक्ल में यूं लिखेंगे 908,561। उम्मीद है कि आप थाउजेंड्स एंड हंड्रेड, सैकड़े और हजार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।